class. Good morning class. Today we will discuss about the question paper which I have given in half yearly. Okay. I think you can see. Okay. So next, in the first one the passage was, read the passage and answer the following question by choosing correct option. It is the duty of corporation or a municipality. What is municipality? Nagar Nigam is municipality. Okay. To provide clean and safe water to the people, they should also see that water supply is maintained regularly. The first question is based on the first sentence. Whenever you are going to solve any comprehension, you should know that how to solve it. Whenever we are going to study about some comprehension, first we should know that where and how to start this question. Okay. So in this one we see that the first one is we first has to read the question of the comprehension. पहले तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे. Number one question is, for clean safe water people mainly depend upon on the first question आपको पढ़ लिया, police station, forest, municipality and neighbors. Next question पढ़ो, which one of the following is an alternative way of meeting our water requirements? Hand pump, complaining, proper drainage and rainwater harvesting. Next question is, does the duty of municipality end at only providing clean and safe water? ये चारों options पढ़ लिए. Next आपको है, according to the passage, what is the main duty of citizen? They should not pollute the wastewater. They should make sure that their waste tanks are full. They should wash their clothes properly, and they should clean their teeth and cows. So these are the four questions. Let's read the paragraph. The paragraph is, it is duty of corporation or municipality to provide clean and safe water to the people. They should also see that water supply is maintained regularly. Checking that drinking water is a satisfactory standard requires better quality control. Rainwater may be harvested. Just like that, rainwater harvesting is same. Okay, in a tank. It may meet our requirements during dry seasons. Dry seasons, you know, like summer season. Summer season में क्या होता है? पानी नहीं होता है, पानी सूखने लगता है, evaporation की rate बढ़ती चली जाती है. That's why the season becomes dry and all the area becomes dry. So just to meet our own requirements, we should conserve the water in the way. The best option to conserve the water is rainwater harvesting. What is rainwater harvesting? Let me tell you. You know that many of the people are now coming forward in the direction of rainwater harvesting, because rainwater harvesting is the best and alternate way to conserve the water. What happens in rainwater harvesting? We just make a small tank down at the home and we keep all the water on the roof. When the rain happens, all the rainwater comes on the roof of the home, and when it comes, it goes through a drain into the tank. When we conserve the tank, we can do this one, and we can do one more thing, that this water tank should be emptied towards the groundwater. So how it will help? It will help to create raise the water level of ground. ग्राउंड में क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है वो बहुत कम होता है. तो वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसमें क्या हो, पानी अधिक से अधिक जाए, और अधिक से अधिक जाने के लिए जरूरी क्या है कि पानी जो है उसका सही मात्रा में उपयोग हो. ऐसा ना हो कि नालियों के द्वारा पानी होते हुए डायरेक्ट नदियों में चला जाए, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको. फायदा किससे होगा, जब हम पानी को कहीं मिट्टी में इकट्ठा करें और वो धीमे 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 छलकर फिल्टर होकर जमीन के पानी में मिल जाए. तो ये एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का. ठीक है, तो यही
चीज इसके बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स, ब्रशिंग देयर टीथ, they should avoid washing their cars and watering the garden and plants with drinking water. It is precious thing and should not be wasted. The first question is, for clean and safe water people mainly depend upon municipality. Which of the following is an alternative way of meeting our water requirements? The answer is रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी मैंने बताया ना ऑल्टरनेटिव वे। ऑल्टरनेटिव मतलब कि एक विकल्प है हमारे पास, मतलब एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि भाई पानी का तो कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, पानी का एक सोर्स है और वो क्या है? रेन। रेन से ही जो पानी आता है उसी से नदियां भरती हैं, उसी से समुद्र भरते हैं, उसी से एवापोरेशन होता है, उसी से हमारे घरों में पानी आता है, वहीं से ग्राउंड लेवल बढ़ता है। तो रेन हमारे पास ओनली सोर्स है। तो रेन के अलावा हमारे पास क्या सोर्स होना चाहिए? अब रेन का आज जितना पानी होता है वो तो जमीनों में बह जाता है और वो तो दूषित हो जाता है, फिर उसको वापस से फिल्टर करना पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि रेन को पहले से ही फिल्टर्ड वाटर में चेंज करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ग्राउंड में इस पानी को जाने से बनाएं, मतलब ग्राउंड में जाने दें ताकि ग्राउंड उसे फिल्टर करके अपने अंदर रख ले। नेक्स्ट क्या है? डज द ड्यूटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी एंड ऑन द प्रोवाइडिंग सेफ वाटर। कह रहा है कि म्युनिसिपैलिटी की जो ड्यूटी है क्या यहीं पर खत्म हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, उसका काम क्या है? दे नीड टू कलेक्ट द बिल। ऐसा कहीं भी इस पैराग्राफ में नहीं दिया है। यस देयर रिस्पांसिबिलिटी एंड्स देयर। ये तो हो ही नहीं सकता, उनकी रिस्पांसिबिलिटी यहीं पर तो खत्म होती नहीं है। नो दे नीड टू मेंटेन द रेगुलर वाटर सप्लाई। ये सही है कि उन्हें रोज रेगुलर वाटर सप्लाई का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा क्या है? नो नीड टू मेक श्योर दैट दे आर सेफ एज वेल। मतलब कि ये सही है, सेफ है या नहीं, इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। म्युनिसिपैलिटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि रेगुलर आपके घर में बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे आप लोग के घर में बिजली कटती है तो आप लोग जनरली क्या करते हो? बिजली विभाग वालों को कॉल करते हो ना, बस उसी तरीके से। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज द मेन ड्यूटी ऑफ सिटीजन। सिटीजन की ड्यूटी क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग? पहला क्या है? दे शुड नॉट पोल्यूट वेस्ट वाटर। यही होगा एक में। दे शुड मेक श्योर दैट देयर वेस्ट टैंक्स आर फुल, वाटर टैंक्स आर फुल। इससे कोई मतलब नहीं, ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। दे शुड वॉश देयर क्लॉथ प्रॉपर्ली, ये भी म्युनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है। दे शुड क्लीन देयर टीथ एंड कप। ये सब जिम्मेदारियां हमारी हैं, लेकिन ये हमारे ड्यूटीज नहीं, ये हमारे वर्क हैं, ये हमारे टास्क हैं, ना कि हमारी ड्यूटीज। ड्यूटीज और टास्क में फर्क होता है ना। ड्यूटीज करनी ही पड़ती है और टास्क आप करिए चाहे ना करिए, कपड़े धोइए चाहे ना धोइए, दांत साफ करिए ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज गिवन वर्ड्स? डायमोस। डायमोस आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या होता है। जो जापान में वहाँ के जो लोग होते हैं, जो जापान में जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके लिए डायमोस वर्ड यूज किया जाता है। आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को डायमोस का मीनिंग पता होगा। कॉविटस मतलब क्या होता है? कॉविटस का मतलब होता है जो आदमी दूसरे का सामान लेने के लिए इसके अंदर बहुत लालच हो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो तारो है, तारो क्या करता है? तारों के जो आस पड़ोस वाले, जैसे हमको पता चलता है कि उसको फाके जो है वो एक नहर के झरने से मिल रहा है, तो सभी वहां उससे जलने लगते हैं और उसको पाने के लिए सभी बर्तन लेकर उस नहर की ओर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरकस। कैरकस मीन्स डेड बॉडी। नेक्स्ट है आपका पाउंडिंग। किसी चीज पर कूद पड़ना, उसे बोलते हैं हम पाउंडिंग। Next question is identify the types of these given sentences. Bring the vegetables from the market. ये किस तरीके का सेंटेंस है? ये ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है? ले आओ सब्जियां मार्केट से ले आओ। दिस इज टाइप ऑफ ऑर्डर। सो आंसर इज इंपरेटिव सेंटेंस। इट इज इंपरेटिव सेंटेंस। कुछ बच्चों ने इसे कमांड लिखा हुआ है, इसलिए मैंने मार्क्स दे दिया है कि उन्हें एटलीस्ट कमांड तो पता है, इसलिए मैंने कमांड वालों को मार्क्स दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। मैंने कल अपना प्रोजेक्ट खत्म नहीं किया। सो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो इट इज नेगेटिव सेंटेंस। कुछ बच्चों ने नेगेटिव लिखा है, कुछ लोगों ने अफर्मेटिव लिखा है और कुछ लोगों ने असर्टिव लिख दिया है। तो जिन्होंने अफर्मेटिव लिखा है उनका
जिन्होंने असर्टिव लिखा है उनको मार्क्स मिला है। हाँ, कुछ लोगों ने इसे स्टेटमेंट भी लिखा है, स्टेटमेंट वालों को मार्क्स भले भले दे दिया है। ठीक है, लिसन टू मी। जिस बच्चे ने भी स्टेटमेंट लिखा है मैंने उसको मार्क्स तो दे दिया है, लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट आंसर नहीं होता है। कभी भी अगर आप लोग लिख स्टेटमेंट तो कोई भी हो जाएगा, स्टेटमेंट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर जगह सेंटेंस को स्टेटमेंट कहते ही हैं। स्टेटमेंट एक तरीके का उद्घोष होता है बच्चों, एक तरीके का क्लेम होता है। स्टेटमेंट कोई वर्ड नहीं जिसको आप सेंटेंस में डिफाइन कर सको। स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस है, आप समझ में आया? स्टेटमेंट भी एक सेंटेंस है, तो इसलिए स्टेटमेंट कभी मत लिखना। इस बार मैंने मार्क्स दे दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई वोंट। नेक्स्ट, what are you doing there? Question mark is there, so answer is interrogative. और तुम लोगों को interrogative की स्पेलिंग नहीं पता है, आधे से अधिक बच्चों ने रॉन्ग कर रखा है। नेक्स्ट है state about the underlined noun whether they are proper, common, material and collective and abstract. First one is a bench of judges. देखो ये क्या है, ग्रुप है आपका, तो it is collective noun. Next, Mumbai is a big city. Mumbai is proper noun. Next is blindness, अंधापन। ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके की फीलिंग है। ये कैसी फीलिंग है? एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। पढ़ाया था ना, सारे नाम तो मैंने पढ़ाए हैं। नेक्स्ट है कविता इज द गर्ल इन द क्लास। अब आपको क्या बताना था? गुड का प्रॉपर, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इन तीनों में से कोई एक यहाँ पर रखना था। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि यहाँ पर द लिखा हुआ है। द कब लगाते हैं? जब हमें सुपरलेटिव लिखना होता है। अब गुड का जो प्रॉपर फॉर्म है वो क्या है आपका? गुड। इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या है आपका? बेटर। और इसका सुपरलेटिव फॉर्म क्या है? बेस्ट। तो जितने बच्चों ने बेस्ट लिखा है उनका पूरा मार्क्स है। नेक्स्ट इज दिल्ली इज डैश देन लिखा हुआ है। मैंने बताया है देन कब आता है? जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब हॉट का क्या है? हॉट प्रॉपर है, इसका नेक्स्ट कंपैरेटिव क्या होता है? हॉटर। और सुपरलेटिव हॉटेस्ट। सो द आंसर इज हॉटर। आंसर इज हॉटर। नेक्स्ट इज identify the type of pronoun. The first one is Martha likes to do her work herself. इसमें से आपका pronoun कौन सा था? ये। और ये कौन सा pronoun था? Reflexive. Possessive हो ही नहीं सकता। Reflexive pronoun. Yes, it is reflexive pronoun. Possessive pronoun क्या होता है? जैसे hers, his, theirs, ये होते हैं आपके possessive pronoun। दूसरा है distributive। distributive कौन से होते हैं? every और each, these are distributive pronoun। demonstrative pronoun this, that, these, those, these are demonstrative pronoun। so what it is reflexive। reflexive मतलब जो reflect करे। यहाँ देखो herself मतलब ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये मार्था की ओर ही इशारा कर रहा है। जो नाउन है वही इसका क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो इसलिए यहाँ पर मार्था के हर्षद क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द पेन इज माइन। अब यहाँ माइन देखो, पता चल गया ना? माइन अभी मैंने बताया, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या होते हैं? तो उसमें आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो पोजेसिव आपका आंसर हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया, होगा नहीं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे हु, विच, व्हाट, ये सब आपके कौन से? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? फिल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या लिखा है? डैश इंग्लिश स्पोकन इन इंग्लैंड। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ए लगाएंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ इंग्लिश नहीं लगता। दूसरा, अगर हम एन लगाते हैं तो एन इंग्लिश। एन इंग्लिश का मतलब जानते हो क्या होता है? एन इंग्लिश का मतलब होता है किसी इंग्लिश आदमी की बात की जा रही है, मतलब इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लैंड के लोगों को कहा जाता है बच्चों इंग्लिश। तो एन इंग्लिश, यहाँ पर तो स्पोकन की बात हो रही है, मतलब भाषा की बात करी जा रही है। तो इंग्लिश जो है वो भाषा है,
तो भाषा के लिए थोड़ी ना हम यूज करेंगे किसी को, भाषा तो अपने आप में वो है ना, कंप्लीट है ना, तो ये तरीके का कॉमन नाउन हो गया। तो यहाँ पर ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना द लगेगा, यहाँ पर क्या होगा आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्या है, सच। सच जैसे वर्ड्स के मैंने हमेशा बताया कि उसके आगे अ लगता है, तो सच अ थिंग होगा। हाँ बेटा, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब आप कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहे हो? यस मैम। अच्छा, इसमें लास्ट के दो आंसर, थर्ड वन का आंसर है आपका नो, दे नीड टू मेंटेन रेगुलर वाटर सप्लाई, ठीक है। और डी वाले का आंसर है आपका दे शुड नॉट पोल्यूट आवर वेस्ट वाटर, ओके। नेक्स्ट इज when and why did she go to US? Who did she marry? उसके हस्बैंड का क्या नाम था? जॉन पेरी हैरिसन। Yes, John Perry Harrison. Yes, it is not working. हाँ, आप सही। So इसमें आप लोगों का आंसर क्या हो गया? शी मैरी वाले का आंसर क्या है? जीन पेरे, सॉरी जीन पेरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका why do you think that narrator visited Miss Bean school? Because he had heard a lot about the school, that they are applying the special kind of technique to teach the student, and they are making the student a good citizen. They are not making them engineer, they are not making them doctors, they were making them what, a good citizen, okay. Next is why did the farmer bring the baby mongoose to home? Because he wanted a good companion to his baby, मतलब वो अपने बच्चे के लिए कंपेनियन चाहता था, इसलिए वो बेबी मंगूस को अपने घर ले आया था। नेक्स्ट, Who visited the shepherd one day and why? शेफर्ड से मिलने कौन आया एक दिन? One day the king visited shepherd to see that how much humble he is and how much wisdom he is. वो कैसे आया था? डिस्गाइज हो गया था। डिस्गाइज का मतलब वेश बदल कर आया था, ये पता करने के लिए कि वो कितना टैलेंटेड है जो मुझे पहचान ले। नेक्स्ट है हाउ डिड, पहचान लिया था कि नहीं पहचान लिया था? यस सर। हाँ। हाउ डिड रे कम्युनिकेट द लास्ट विजिटर इन हिज शॉप? रे ने कैसे बात करी अपने लास्ट विजिटर से? थ्रू अ नोटपैड, थ्रू अ नोटपैड राइटिंग ऑन देम, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन द कोर्ट? अकबर ने तानसेन को कोर्ट ज्वाइन करने के लिए क्यों बोला? बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिसन तानसेन एनी टाइम, समटाइम्स इवन ही वेंट टू द होम, the room of Tansen to listen the song of Tansen, okay. Next question is the long answer. इनमें से आप लोगों को एक ही करना था, कुछ बच्चों ने दोनों कर दिए थे, लेकिन मैंने उन्हीं को मार्क्स दिया, जिन लोगों ने दो किया था उसमें से मैंने पहले वाले के उनको मार्क्स दिया है, ठीक है। What do you know about Kalpana Chawla's birth, education, great achievement and tragic end? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख दी। लाइक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, करनाल में। देन उसकी एजुकेशन कहाँ हुई थी? हरियाणा में, शुरुआती एजुकेशन तो वहीं हुई थी। देन शी वेंट टू यूएस टू गेट द डिग्री ऑफ एविएशन, बैचलर इन एविएशन इंजीनियरिंग। देन ही टुक द ट्रेनिंग ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग ही टुक? सॉरी, शी टुक व्हाट इंस्ट्रक्टर? वही इंस्ट्रक्टर की थी ना, पायलट की डिग्री ली थी उसके बाद। फिर उसके बाद ग्रेट अचीवमेंट क्या था? उन्होंने कोलंबिया से अपनी पहली यात्रा
अंतरिक्ष की 16 दिन की यात्रा कंप्लीट करी थी। उसके बाद जब वो दूसरी यात्रा पर गई, उसी में उनके साथ क्या हो गया था? She met an accident and now got her tragic end. Next, why did the dog prefer a strong master to live in jungle? डॉग को एक स्ट्रॉन्ग मास्टर की जरूरत क्यों थी? To save himself from other violent animals. Okay? इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते थे। कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चों छोटा लिखा है, लेकिन मार्क्स मैंने दे दिए हैं। अगर आप लोगों ने आंसर कंप्लीट लिखा होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स एंड माय क्लासरूम। इन दोनों में से फ्लावर्स को मैंने करवाया ही है। माय क्लासरूम कुछ लोगों ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था, कुछ लोगों ने सेटिस्फैक्टरी लिखा था। बट आई एम हैप्पी दैट यू एटलीस्ट डिड समथिंग, सो इट इज वेरी गुड फॉर यू ऑल। नेक्स्ट आपका क्या है? इमेजिन यू वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, राइट अ डायरी एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग। ये तो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था, लेकिन आप लोग कर लिए हो गए आए थे। अच्छा किया है, काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है मेक माई सिटी ग्रीन पर, और बहुत सारे बच्चों ने ये वाली स्टोरी भी लिखी है। एंड आई लाइक दैट यू ऑल हैव रिटन द ब्यूटीफुल स्टोरी बेस्ड अपॉन दीज पिक्चर्स। व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी वाज अबाउट a man. What he was doing? He was carrying a goat. He met 3 persons in the jungle. The first person came and he asked about the identity of the goat, that they were saying that it is an ass. They were saying that it is an ass. The second person came and he also said that why are you carrying this ass on your shoulder? Third person again came and asked that why are you carrying this ass? So the person who was carrying the ass, the Pandit, left the goat there and went to his home. So it means that what is the moral of the story? The moral of the story that we should not believe the others. We should believe our own eyes and ears, and we should not listen other. Okay? To take the decision on about anything. So class, this was your question paper, and I hope that you all have got good marks. All the students are pass. I am telling you, one student is fail in 6C. Okay? Yes, beta, I have checked all the classes. Wait.